Now, what happens whenever you know the moment of inertia of an object about the center of mass, sum always doesn't allow you to solve it by the center of mass. कोई दूसरा point से moment of inertia, the moment of inertia can be about any other axis of rotation. So whenever the moment of inertia you need to calculate is about some axis of rotation which is parallel to the initial axis of rotation. For example, ये rod है हम लोगों ने moment of inertia about the center of mass निकाला है and also about the edge निकाला है. So these two axes are parallel to each other. तो अगर तुमको center of mass का वैल्यू मालूम है तो इसका वैल्यू याद रखने का जरूरत वो हम लोग parallel axis theorem से निकाल सकते हैं. Parallel axis theorem क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि if you know the moment of inertia of any object about its center of mass and you want to find out the moment of inertia of the same object about some other axis of rotation which is parallel to the first axis, right? Center of mass axis, parallel to the first axis, then the moment of inertia in the new axis is ICOM plus MB square. Then B is what? B is the perpendicular distance between the parallel axis. Between the parallel axis. Plural, parallel axis. Okay. So this distance out here is D. So now, now where D is the distance between the parallel axis. Okay. तो ये कंसेप्ट हम लोग एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि ये एट ऑल हम लोगों को सही आंसर देता है या नहीं. ठीक है. तो फर्स्ट बाद में ट्राई करेंगे. पहले जो लोन है उसके बारे में निकाल देते हैं. हम लोगों को ICOM फॉर रॉड क्या मिला था बोलो? फॉर रॉड ICOM इक्वल टू ml स्क्वायर बाय आया था, राइट? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है ICOM इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12. अब हम लोग ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो इसके लिए अगर I होगा तो ये वाला फार्मूला के हिसाब से व्हाट शुड इट बी? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m into what? d. m is the mass m and d is what? Distance between the parallel. यहाँ पर perpendicular distance between parallel lines है क्या? ये पूरा लेंथ L है, तो obviously ये लेंथ कितना है? तो हम लोग D के जगह में क्या डाल सकते हैं? If we put the value and simplify ml square by 2 4 12 plus ml square 3 ml square 4 ml square back मिला? मिला इंटीग्रेट करके भी हम लोगों को यही फॉर्मूला यही वैल्यू मिला था ना, राइट? तो हम लोग उतना इंटीग्रेशन करने नहीं जाएंगे. अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम लोग यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डाल देंगे और विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन. सर अगर ये दिया रहेगा तो ये सेम प्रोसेस से बीच आ जाएगा. हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर ये और डालेंगे, सीओम को निकाल देंगे सॉल्व करके वहां से. वी कैन आल्सो यूज दैट, यूज कर सकते हैं. समझ आया? yes sir. Is this parallel axis theorem clear to all of you? अच्छा, अब it is not always necessary कि हम लोग जो axis of rotation के अबाउट में निकाल रहे हैं वो parallel axis ही हो. वो कभी कभार सचिन निकाल दे क्या? So then in few cases you might also need to find out the moment of inertia about the perpendicular axis. मतलब कैसे? The next one is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem क्या बोल रहा है? अच्छा ये हो गया, सब लोग बना लिए. अच्छा जल्दी से एक बार बना लो क्विकली. Say the next one is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोई भी laminar object के लिए, क्या ऑब्जेक्ट के लिए? Laminar. So there is a restriction over here, applicable only for laminar objects. What do you mean by laminar objects? मतलब अरे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसका थिकनेस बहुत कम हो, राइट? लाइक दिस पेज. ठीक है. तो अगर हम लोग टू डायमेंशन मतलब पतला ऑब्जेक्ट. समझ में आया? सो सी दे आर सेइंग दिस इज द
laminar object. Now if you rotate this object about an axis which passes through its center and horizontal, can you visualize this? Axis rotation यहाँ से pass कर रहे हैं, right? हाँ या ना? तो उसके लिए मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, because I am choosing this as the x axis. उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, ठीक है? अब सेम पेज को हम लोग इस एक्सिस के अबाउट में टर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक्सिस वर्टिकल है, सो मान लो ये Iy है. सो अगर हम लोग Ix और Iy पता है, then they are saying if you turn the same object like this मतलब ऐसे ऐसे उंगली के ऊपर रख के बहुत लोग किताब घुमाते हैं ना ऐसे करके, सो वैसे अगर टर्न करते हैं हम लोग तब एक्सेलरेशन किधर रहेगा? ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस z एक्सिस में रहेगा, हाँ या ना? तब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोल रहा है कि Iz will be equal to Ix plus Iy, ठीक है? मतलब अगर ये हम लोग का लैमिनर ऑब्जेक्ट है, ये डॉटेड एक्सिस के अबाउट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, ये डॉटेड एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, then if you have a z axis over here which is perpendicular to this plane, ठीक है? 3 dimensional obviously, ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, तो मतलब इसके अबाउट ये ऐसे टर्न करेगा, मतलब ये वाला प्लेन में ही टर्न करेगा, ठीक है? then the moment of inertia will be Iz which is equal to Ix plus Iy, और याद रखना Iz ही always equal to Ix plus Iy होता है, you cannot write Ix equal to Iz plus Iy, मतलब z always इससे परपेंडिकुलर प्लेन होता है और x और y जो है वो always उसका अपना ओरिजिनल प्लेन में होता है. Is that clear? And all three axes has to be perpendicular to each other. समझ में आया? जल्दी से लिख लो एक बार. Perpendicular axis theorem. Write this down. Perpendicular axis theorem is applicable only for laminar objects. Applicable only for laminar objects. Be clear है? अच्छा. Laminar objects. Here the x-axis and y-axis. Here the x-axis and y-axis should always lie in the plane of the lamina. Here the x-axis and y-axis should always lie in the plane of the lamina. And the z-axis should be always perpendicular to the lamina. And the z-axis should be always perpendicular to the lamina. Should be always perpendicular to the lamina. Perpendicular to the lamina. Is that clear? Z-axis should be always perpendicular to the lamina. So, x-axis or y-axis moment of inertia मालूम है और z-axis should be always perpendicular to the lamina. Alright? अब ये जो कंसेप्ट है इसको एक जगह में अप्लाई करके देखते हैं. जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक जगह में अप्लाई करके देखा है, वैसे इसको भी एक जगह में अप्लाई करके देखते हैं. किसके लिए? मान लो रिंग के लिए. एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन सा एक्सिस पता होता है हम लोगों को? z एक्सिस. क्यों? हम लोगों ने क्या किया था देखो, ये रिंग है ना, इसका COM कहाँ है और वहां में से अगर एक्सियल रोटेशन पास करेगा so it will be perpendicular to its plane. तो ये हम लोग का z एक्सिस है. इसके अबाउट में हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कितना? m r square, where m is the mass of the ring and r is the radius. ठीक है? अब अगर पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग अबाउट एनी वन ऑफ इट्स डायमीटर, तब कैसे करेंगे? any one of its diameter. So कोई भी एक डायमीटर अगर हम लोग ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा बना सकते हैं या ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा बना सकते हैं, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पूछा है. मतलब या तो तुम Ix फाइंड करो या तो तुम कैसे करेंगे? नहीं, Iz is equal to mr square. Iz equal to mr square मालूम है हमको, लेकिन Ix और Iy निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज क्या बता सकते हैं हम लोग,
राइट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये रिंग को ये एक्सिस के अबाउट में फ्लिप करो या ये रिंग को ये वाला एक्सिस के अबाउट में फ्लिप करो, दे विल बी सेम। तो इसीलिए यहाँ पर Ix और Iy दोनों सेम होगा, तो इसलिए हम लोग Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू I ले रहे हैं। नहीं Iz नहीं, Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू Iz नहीं है, Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू I ले रहे हैं। Now using this formula, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a square will be equal to I, you understand why? Ix की जगह में भी I डाले और Iy की जगह में भी and Iz is a square, so that's equal to ताकि it will be 2I is equal to I is equal to m square. right, I is equal to m square, right? So about any one of its diameter, the moment of inertia will be this. So यहाँ लिखते हैं let MOI about any one of its diameter be ठीक है, जल्दी से एक बार बना लो।